ہوتے تھے وہ آپ کے کرٹیل ہو گئے ہیں، تو ملک کے لیے بڑا اچھا ہے کہ اور کرنسی کے لیے اچھا ہے، تو انٹرن آپ کی اکانومی کے لیے اچھا ہے۔ ترسیلات زر میں اضافے کی اہم وجہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں غیر ملکی افراد کی سرمایہ کاری اور حکومت کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے رقوم کو پاکستان بھیجنے کی حوصلہ شکنی ہے۔ سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے 6.4 ارب ڈالر، یو اے ای سے 5.1 ارب ڈالر، برطانیہ سے 3.3 ارب ڈالر اور امریکہ سے 2.2 ارب ڈالر آئی ہیں۔ دوسری جانب آج بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس میں 185 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور مارکیٹ کا اختتام 45,981 پر ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج 1,74,212 شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 23 ارب روپے سے زیادہ تھی، جبکہ کاروباری حجم 53 کروڑ 67 لاکھ روپے سے زیادہ رہا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فاروق حبیب نے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان امبرین جان نے ادارے کی کارکردگی اور پوڈ کاسٹ پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات کو DRM منصوبے کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری فواد حسین نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کو جدید خطوط پر استوار کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ادارے کو عصر حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ملکی تشخص اور قومی بیانیے کو اجاگر کرنے میں ریڈیو پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ پوڈ کاسٹ پروگرام کے جلد اجرا کے حوالے سے انتظامیہ اور کارکنوں کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پوڈ کاسٹ پروگرام ریڈیو میں جدت کی علامت بن کر ابھرے گا۔ انہوں نے کہا کہ DRM ریڈیو پاکستان کو ٹیکنالوجی کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ ریڈیو ملازمین اور ورکرز کے مسائل کا حل ترجیح ہے، پینشنرز کے مسائل بھی ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کو وزیر اعظم کے ہاؤسنگ پروگرام میں شامل کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی احتساب کی پالیسی واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں، کابینہ اراکین ہوں یا اپوزیشن رہنما، الزامات لگیں گے تو تحقیقات ہوں گی اور جواب دہی کا اصول لاگو ہوگا۔ یہی نظام کی تبدیلی ہے جس کا وعدہ تھا۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ طاقتور ترین لوگ بھی قانون سے مبرہ نہیں۔ یہی نظام میں تبدیلی ہے کہ حکومتی اہلکاروں کو احتساب کا خوف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی رنگ روڈ معاملے میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ کو 23 کلومیٹر تک بڑھایا گیا۔ اس فیصلے سے اضافی زمین کی خریداری کے مد میں حکومت کو 20 ارب روپے ادا کرنا پڑے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحقیقات کا کہا گیا۔ کمشنر راولپنڈی نے ابتدائی تحقیقات میں ان اطلاعات کی تصدیق کی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی اور ان کے ساتھ مزید افسران اس اسکینڈل میں شریک تھے۔ ابھی تک اس معاملے میں کسی وزیر یا مشیر کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا مقصد جڑواں شہروں میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنا اور شہریوں کو سہولت دینا ہے۔ تاہم منصوبے کی الائنمنٹ میں مبینہ تبدیلی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد تحقیقاتی عمل جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ کسی بھی بڑے شہر میں ہیوی ٹریفک کی روانی اور شہر میں ٹریفک کی صورتحال کی بہتری کے لیے رنگ روڈ منصوبہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کو بھی اسی طرح کے منصوبے کی اشد ضرورت ہے، لیکن جاری رنگ روڈ منصوبے کے آغاز میں ہی کرپشن کے الزامات کے باعث منصوبہ طوالت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد سابق کمشنر راولپنڈی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود سمیت انتظامی افسروں کو OSD بنا دیا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے آتے ہی عوام کو یقین تھا کہ منصوبہ اب جلد مکمل ہوگا، لیکن ماضی کی حکومت نے منصوبے کی بنیاد میں کرپشن کی اینٹ رکھی، جس کے باعث منصوبے کی مدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے کرپشن کے الزامات پر ہمیشہ سخت موقف اپنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک صرف الزامات پر ہی وزیر اعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں ذوالفقار عباس بخاری نے کہا کہ رنگ روڈ یا کسی بھی ریئل اسٹیٹ منصوبے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ کہا ہے کہ الزامات سے بریت تک عہدے سے الگ رہنا چاہیے۔ رنگ روڈ انکوائری مکمل ہونے تک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں اور کسی بھی انکوائری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی منصوبے کے حوالے سے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ گزشتہ حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے نہیں بن سکا۔ یہ اگر الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پیورلی اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں۔ رنگ روڈ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست
पूरा खानदान छोड़ देगा। साबका हुक्मरान करप्शन में सहूलतकारी के एवज भी अपना हिस्सा वसूल करते थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की करप्शन में गुज़श्ता हुकूमत से जुड़े कई किरदार सामने आए हैं। माजी में करप्शन और करप्शन करने वालों को बुरा नहीं समझा जाता था। चेयरमैन नैब ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना बदअनवानी, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। नैब रावलपिंडी को तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदारान का तयन करने की हदायत की गई है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नासिर मिर्जा ने कहा है कि रिंग रोड मंसूबे पर इंक्वायरी खुशाइंद है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये जो बीच में प्रॉब्लम निकल आया कि इस किस्म का कि इसके अंदर कोई रीअलाइनमेंट के अंदर कोई खुर्द बुर्द या किसी किस्म लोगों को नवाजने के लिए इसके अंदर वर्किंग की गई है, उसकी वजह से इस पर ताखीर जो है वो रावलपिंडी की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सख्त परेशान है। और हम ये समझते हैं अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई बदनवानी किसी ने भी की है तो उसको वाकई सजा मिलनी चाहिए। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जी जो ये इंक्वायरी अपनी जगह पे रखें लेकिन काम जारी और सारी रखें, क्योंकि ये एक शहर के लिए बेहतर जो है ना मंसूबा है। रिंग रोड मंसूबे से नई इंडस्ट्री के कयाम, मंडियों की शहर से बाहर मुंतकिली और शहर में ट्रैफिक के मसाइल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। रिंग रोड मंसूबे में करप्शन इल्जामात पर तहकीकात खुशाइंद है, ताहम अवामी इत्तला का ये मंसूबा जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब का कहना है कि माजी में नौकरियां फरोख्त करके इदारों पर इजाफी बोझ डाला गया, जिसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभालने के बाद बदहाल मईशत को सहारा दिया। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद पाकिस्तान आज माशी तौर पर मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बातें चोर मचाए शोर के मुतरादिफ हैं। सिंध हुकूमत की माफियाज की सरपरस्ती की वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। बताया जाए कि सिंध में मुसलसल तीसरी मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इन लोगों ने गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया? नाज़रीन, लाहौर के एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ और दीगर मुलजिम जज शेख सज्जाद अहमद की अदालत में पेश हुए और इस्तदा की कि कौमी असम्बली इजलास और कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें लंबी मुद्दत के लिए मोहलत दी जाए। आशियाना केस में अब तक 86 में से 23 गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। नाज़रीन, हुदैबिया पेपर मिल्स केस पाकिस्तान की तारीख में अलग ही हैसियत रखता है। 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे के दौरान हुदैबिया केस में बहुत से ड्रामाई लम्हात भी देखे गए। हुकूमत ने अब इस केस की नए सिरे से तफ्तीश करने का फैसला किया है। हुदैबिया केस और इसकी तारीख क्या है, हमें बताएंगी हुमा इकबाल अपनी रिपोर्ट में। हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके बाद हुकूमत ने फैसला किया कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बेहद अहम है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ के सियासी वारिस हमजा शहबाज भी इसके मरकजी किरदार हैं। 3 दिहाई पुराना हुदैबिया केस है क्या? आइए कुछ तारीख के सफ़ात पर नजर डालते हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर इल्जाम था कि उन्होंने 1990 की दिहाई में अपनी हुदैबिया पेपर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। रेफरेंस साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के 25 अप्रैल 2000 को दिए गए इस बयान की बुनियाद पर दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने जाली अकाउंट्स के जरिए शरीफ खानदान के लिए $1 करोड़ 48 लाख के लगभग रकम की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ किया था। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अक्टूबर 2011 में नैब को इस रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया था, जिसके बाद 2014 में लाहौर हाई कोर्ट ने ये रेफरेंस खारिज करते हुए अपने हुक्म में कहा था कि नैब के पास मुल्जिमान के खिलाफ नाकाफी सबूत हैं। इस रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सबिया शहबाज, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर फरीक हैं, जबकि इसहाक डार को बतौर वादा माफ गवाह शामिल किया गया।
पनामा केस के फैसले की रोशनी में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दोबारा खोलने की अपील दायर की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। बाद में नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जो कि आला अदलिया ने 29 अक्टूबर 2018 को समाअत के बाद मुस्तरद कर दी थी। अब इस मुकदमे की तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी असम्बली में 3 ऑर्डिनेंसेस में 120 दिन की तौसीह की करारदादें मंजूर कर ली गईं। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस और पाकिस्तान एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस में तौसीह की गई। निजी कार्रवाई के दिन ऐवान ने तवानाई की पैदावार, तरसील और तकसीम के एक्ट में मजीद तरमीम करने का बिल, इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमीन बिल और पाकिस्तान नफ्सियात काउंसिल बिल की मंजूरी दी। अरकान की जानिब से पेश किए गए 8 बिल मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए गए। सिविल अफसरान की जबरी रिटायरमेंट से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कौमी असम्बली को बताया कि इस सिलसिले में कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा, हुकूमत को इख्तियार है कि वो मुलाजमीन की जांच पड़ताल करे। एक और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर दाखिला उमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी शौकत अली ने बताया कि इस्लामाबाद में फार्म हाउसेज को फार्मिंग के बजाय रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास जुम्मे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीर वाइस और उमर फारूक ने मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमाओं मीर वाइस, मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लॉन और शोहदाए हवाल के हवाले से शहादत पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जामे प्रोग्राम का ऐलान किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीर वाइस उमर फारूक की जानिब से ऐलान करदा प्रोग्राम के तहत आज से 21 मई तक कश्मीर काज और रियासती आवाम के हुकूक और भारतीय मुजालिम को उजागर करने के लिए भरपूर सोशल मीडिया मुहिम चलाई जाएगी और पूरे मकबूजा इलाके में पोस्टर्स और बैनर्स लगाए जाएंगे। मीर वाइस ने मकबूजा इलाके की आवाम से अपील की है कि 21 मई को मुकम्मल हड़ताल करें और कोरोना SOPs पर अमल करते हुए श्रीनगर में वज़ार शुहदा की तरफ मार्च करें। उन्होंने कहा कि इस दिन पूरे मकबूजा इलाके की मसाजिद में दुआया मजालिस का एहतमाम किया जाए। मीर वाइस उमर फारूक ने आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों पर जोर दिया कि वो आज से जुमे तक एहतजाजी रैलियों और दुआया मजालिस का एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बुध 19 मई को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जबकि जुम्मा 21 मई को इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में खुसूसी दुआ की जाएगी और एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। श्रीनगर के इलाके कनमो में गुज़श्ता रोज़ 2 नौजवानों की शहादत भारतीय फौजियों की जानिब से एक और जाली मुकाबला साबित हुआ। इलाके के लोगों ने भारतीय हुकाम के दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया कि नौजवान अस्करियत पसंद थे और वो झड़प में मारे गए। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि वाज़ेह तौर पर जाली मुकाबला था, जिस तरह भारतीय फौजी आज तक ऐसे मुकाबले दिखाते आए हैं। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि नौजवान पुलवामा से सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए खनवा आए थे और फौजियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने फरार होने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी ताल्लुकात आमा बशीर अहमद इंदराबी ने जाली मुकाबले में नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि जब भी भारतीय फौजी गुस्से में होते हैं तो वो आम शहरियों पर फायरिंग करते हैं जैसे वो शिकार से लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 बेगुनाह अफराद के मावरा अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय काबिज अफवाज मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह लोगों के मावरा अदालत कत्ल, तशद्दुद और गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहा है और इस बात पर जोर देता है कि UN कमीशन के जरिए इसकी तहकीकात की जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी और जारी मुकाबलों में बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। KMS के मुताबिक मौलाना सरजान बरकाती की सरबराही में कायम तहरीक फिक्र एतकाद के ज़ेर एहतमाम इस मुजाहरे की क़यादत अब्दुल हमीद लॉन ने की। मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों के मावरा अदालत कत्ल का नोटिस लें। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मौसर इकदामात से मुल्क भर में कोरोना वबा के फैलाव में कमी आई है।
नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2566 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के इजलास के बाद मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस बारे में तफसील जानते हैं सदफ अफजल से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 135 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 2566 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई, जबकि 29,801 अफराद के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर करवा कर अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वैक्सीन लगवाने के बावजूद एहतियात करें। वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बावजूद मास्क पहनना, समाजी फासला इख्तियार करना और हाथ धोना बेहद जरूरी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क भर में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। साइनोफार्म अवेलेबल है और ये इस्तेमाल हो रही है और होती चली जाएगी। वो तमाम लोग जिनको पहली डोज साइनोफार्म की लगी, उनको दूसरी डोज भी साइनोफार्म की ही लगे। तरजीही बुनियाद के ऊपर अगर आपको एक वैक्सीन की डोज लगी है तो उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी चाहिए। यानी ये जो मिक्स एंड मैच है ये इस वक्त हम नहीं रेकमेंड कर रहे हैं। 38 लाख डोजेज लग चुकी हैं और उसमें से 4,329 रिपोर्ट्स थी साइड इफ़ेक्ट की अभी तक। इनमें से बल्कि 90% तो ऐसी थी जिनका ताल्लुक जहाँ टीका लगा वहाँ दर्द या बुखार की सूरत हाल में था। अच्छा, एक और वैक्सीन पाकिस्तान में अब इस्तेमाल होनी शुरू हुई है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दरियाफ्त शुदा बनाई हुई है। जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं और जो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट का चांस हो भी तो वो बहुत थोड़ा है। तीसरी लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। बहैसियत कौम ये हम सबका फर्ज है कि स्टे होम स्टे सेफ की हिकमत अमली को अपनाएं ताकि खुद को और अपने प्यारों को इस वबा से बचा सकें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ नंबर आज़मा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खिदमात का एतराफ़। पेशावर में खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कोरोना से शहीद होने वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लवाहिकीन में चेक तकसीम किए। शहादा के लवाहिकीन में चेक्स तकसीम करते हुए 9 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के वरसा को फी का 70 लाख रुपए दिए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि तिब्बी अमले की खिदमात और कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी SOPs पर अमल दरामद के लिए इकदाम जारी हैं। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला में वबा के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक अमल दरामद कराया जा रहा है। इस ज़िम्न में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ SOPs के तहत चलाने की इजाज़त है, जबकि आवाम की सहूलत के लिए बाजार और मार्केटों में एहतियाती तदाबीर को भी मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है। हम लोग बहुत एहतियात कर रहे हैं और सवारियों को भी मास्क के बगैर नहीं छोड़ रहे। आवाम को सबको एहतियात करना चाहिए। सफ़र में सबको एहतियात करनी चाहिए और आप लोगों को भी करनी चाहिए। घरों में भी सफ़र में भी एहतियात करो, एहतियात बहुत ज़रूरी है। हुकूमत बलूचिस्तान ने बहुत अच्छा डायरेक्टिव्स लिए हैं। बाज़ारों में भी एहतियात करें, घरों में भी एहतियात करें। अगर मसाजिद में जाएं तो उधर भी मास्क लगाकर नमाज पढ़े, ये हम सबों के लिए बेहतर है। संडेमैन प्रोविंशियल हॉस्पिटल कोयटा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने का अमल भी मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत भरपूर इक़दामात के तहत सूबे की आवाम के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। सेहत आमा के लिए मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात काबिल सताइश हैं, लेकिन अवाम को भी एहतियात को लाजमी अपनाना है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। अदन भारत में मुसलसल लाखों केसेस सामने आने से मुल्क भर में इंतहाई बदतरीन सूरत हाल का सामना है। कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 2,52,28,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान 12,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। भारत के हस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मुतासरा अफराद हस्पतालों के बाहर फुटपाथ और सड़कों पर पड़े हैं, जबकि लवाहकीन अपनी मदद आप के तहत
अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयों का इंतजाम करने पर मजबूर हैं। भारत में अब तक मजमूई तौर पर 2,78,000 से ज्यादा अफराद कोरोना के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,63,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मरने वालों की तादाद 4,329 रही। शमशान घाटों और कब्रिस्तानों की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। लाशों को लाने और ले जाने का माकूल इंतजाम न होने के बायस गाड़ियों वाले मुंह मांगे दामों लाशों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस समेत दुनिया भर के कई मुल्कों ने भारतीय शहरियों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर में भी कोरोना ने अपना असर दिखाया है। कोरोना से मुतासरा सर फहरिस्त मुल्क अमेरिका में 6.5 लाख से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि भारत दूसरे और ब्राजील 4,36,862 अमवात के साथ तीसरे नंबर पर है। कोरोना से मुतासर होने वाले दीगर मुल्कों और खास तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अलगर्ज एशिया, यूरोप और अफ्रीका समेत तकरीबन तमाम बड़े आज़मों में कोरोना ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। सेहत के माहिरीन का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए हम सबको एहतियाती तदाबीर पर न सिर्फ खुद अमल करना होगा, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हमा वक्त इसकी तरगीब देना होगी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करेंगे समुद्री तूफान ताकते की, जिसकी 10-10 फुट तक ऊंची लहरों ने भारतीय साहिली शहरों में तबाही मचा दी है और मुंबई समेत मुतादिद साहिली शहर कई फुट तक पानी में डूब चुके हैं। और अब तक 27 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि गहरे समंदर में मौजूद बहुत से माहीगीरों समेत सैकड़ों अफराद लापता हैं। इतलात के मुताबिक इंडियन नेवी के जहाज और हेलीकॉप्टर भंवर में फंसी 3 कश्तियों में मौजूद 700 अफराद को बचाने में मसरूफ़ अमल हैं। उधर साहिल से कुछ फासले पर एक बहरी जहाज तूफानी मौजों की जद में आकर डूब गया। जहाज पर 261 अफराद सवार थे, जिनमें से 180 को बचा लिया गया। दीगर अफराद की तलाश जारी है। समुद्री तूफान के बाइस बंदरगाहें और हवाई अड्डे बंद, जबकि रेल और रोड ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। ताकते तूफान के बाइस दरख्त और छतें गिरने से अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली और मुवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कराची के मौसम की। और शहर कायद में शाम के औकात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश ने शदीद गर्मी का जोर तोड़ दिया है। आपको दिखाएंगे हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। बहिरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान तोकते के बायस शहर कायद में जारी शदीद गर्मी और हब्स ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। वहीं आज शाम अब्र रहमत बरसा और दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई। बारिश के बाद शहरी बहुत खुश नजर आए और बारान रहमत और खुशगवार मौसम पर दिली मुसरत का इजहार किया। 3-4 दिनों से काफी हब्स और बहुत गर्मी की कैफियत थी, तो अल्लाह का बड़ा करम है, अब्र रहमत हुई है। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। आज मौसम अच्छा था तो सोचा कि बाहर आ जाएं, पानी पूरी खा लें। लेकिन हीट स्ट्रोक की वजह से गर्मी बहुत थी और अब अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई है, ठंडक हो गई है थोड़ी बहुत। अभी ये हल्की सी बारिश पड़ी है, अल्लाह की रहमत है और इसकी वजह से हम भी घर से निकले हैं। 2-3 दिन से तो दिल ही नहीं चाहता था काम पे निकलने का, इतनी गर्मी थी। बारिश के बाद अच्छा मौसम हो गया है। सुबह में तो वैसे ही गर्मी थी, आज शाम को ठंडा हुआ है। आइसक्रीम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कराची के मौसम को। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ झक्कड़ चले और कुछ जगहों पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जबकि सिंध के जिले थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिससे वहाँ भी मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान से कराची और पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 46 और लिस्पेरा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के अहम शहरों के दर्जा हरारत आपकी टीवी स्क्रीन पर। फैसलाबाद में 40, मुल्तान में 41, सरगोदा में 42, श्रीनगर में 26, रावलाकोट में 24, जम्मू में 39, लेह में 18, पुलवामा में 17 और अनंतनाग में 17 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदे खुसूसी मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जुमे को निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। इसराइल बच्चों और औरतों को निशाना बना रहा है और मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि अल-अक्सा जो है वो हमारे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रेड लाइन रखती है, खत्ते अहमर रखती है
21 मई को पूरे मुल्क के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की हिदायत पर मजलूम फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। यौम यकजहती फलस्तीन मनाया जाएगा। लाहौर में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि फलस्तीन की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की खामोशी काबिल मजम्मत है। इसराइली फौज जंगी जराइम के मुर्तकब हो रही है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों पर मजालिम रोकने के लिए तमाम मुसलमान मुल्कों को मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि फलस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और फलस्तीन आज़ाद होकर रहेगा। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम महकमों को 2.5 साल कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में महकमा दाखिला की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के अहदाफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब की 21 जेलों में इंफॉर्मेशन सिस्टम का आगाज़ हो गया है और इसके साथ जेलों में कोर्ट रूम्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के साथ जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स भी बनाई जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने चीनी शहरियों के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है जिसमें कहा गया है कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ के ही होकर रह गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नमरा सुहेल से। मेरी तेरी जिंदगानी है हमारी दोस्ती, मुझको तुझको जान से प्यारी है हमारी दोस्ती।没参与过这个节目啊，有点紧张啊。पाकिस्तान को खुदा ने इतने खजानों से नवाजा है कि दुनिया में शायद ही कोई और मुल्क हो। खूबसूरत लोगों का हसी देश पाकिस्तान अपने अंदर ढेरों मोहब्बतें समेटे गैर मुल्की शहरियों के लिए भी इतना ही अहम है। हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे ही कुछ चीनी शहरियों से जो पाकिस्तान आए और यहाँ के होकर ही रह गए। 我记得曾经有一次我在巴基斯坦当地演出的时候，我唱完以后，当时下面的基本上就所有的观众基本上就。2006年7月31号，我第一次到巴基斯坦，开启了我巴基斯坦14年的工作生涯。70年学乌都语，我的老师阿夫达布谢米姆教授就是巴基斯坦人，从那儿开始，我就跟巴基斯坦结下了深深的情。 बच्चे बूढ़े जवान मर्द और औरत सब पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत से आगाह कर रहे हैं। इनकी नम आंखें और लफ्जों की चाशनी ये बताती हैं कि पाकिस्तान चीन दोस्ती के रंग कभी फीके नहीं पड़ सकते। 给我取名叫王依然，这是因为他要给伊斯兰堡留下纪念。巴基斯坦在我心中是肯定是除了中国之外最喜欢的国家。那么巴基斯坦给我印象是非常非常深的。 खूबसूरत पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और हमारी सकाफत ही हमारा असासा है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। जिंदा दोस्ती जिंदाबाद। I love पाकिस्तानी भाइयों, सलाम वालेकुम, दिल से प्यार करते हैं आपको। मेरी तेरी जिंदगानी है।